جدو کرے کوئی نوازیاں وفاندہ اے خدا ہاتھ کرے آلے اپنا بداندہ 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 اے خدا صدر کمیس کے عبد نجونو بلدی پٹی وچ سٹ دے صدر کمیس کے عبد نجونو بلدی پٹی وچ سٹ دے اور بھی آگے بتاؤ دینے تے لامبو اگ دے اٹھ دے اور بھی آگے بتاؤ دینے تے لامبو اگ دے اٹھ دے دے گیا کبوتراں کامانوں سیوا دا کم کروا لیندا دے گیا کبوتراں کامانوں سیوا دا کم کروا لیندا دے گیا سمندراں نالیاں نوں اپنے داساں لئی راہ بنا لیندا گدیاں دے منہ کھلوا لیندا گدیاں دے منہ کھلوا لیندا مچھلیاں کولوں بھی اگلوا لیندا ہلیلویا صدر کمیس کے عبد نجونو بلدی پٹی وچ سٹ دے صدر کمیس عبد نجونو بلدی پٹی دے وچ سٹ دے اور بھی آگے بتا دینے تے لامبو اگ دے اٹھ دینے اور بھی آگے بتا دینے تے لامبو اگ دے اٹھ دینے ایسے موجزات وفاندہ اے خدا ہاتھ کرے آلے اپنا بداندہ 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 اے خدا ہلیلویا فاسٹ ہو رہا ہے تو میں نے یہ گلی دکھانا چھوڑ دیا تھا تو آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں پھر سے یہ گاؤں کہ خداوند پھر یہ اعلان کی وہ واہ کو اس ملک پاکستان سے ہماری کرسچن کمیونٹی اور جتنے ہمارے کلام کو جلا دیا ہالیلویا سب تالیاں بجائیں گے اور اس گیت کو انجوائے کریں لوکی کہندے نے کرونا اے بلا میرا یسوع نو کر دو تباہ لوکی کہندے نے کرونا اے بلا میرا یسوع نو کر دے نے کرونا دی صدا اتے ملی ساڈے پاپا دی صدا یسوع دے کولوں دور رہن دی یسوع دے کولوں دور رہن دی لوکی کہندے نے کرونا اے بلا میرا یسوع نو کر دو تباہ لوکی کہندے نے کرونا اے بلا میرا یسوع نو کر دو تباہ کرونا ہی کرونا لوکی ہر ویلے کر دے خدا نہ کرداں لے میرا رب تجھے کر دے اس لفظ کی سمجھ آئی میں نے کیا کرنا اس کو ہی بتائیں کرونا لوگ ہر ویلے کہندے نے رب تو نہیں ڈردے انہاں ذکر خدا دا نہیں کردے جنہ کرونا ہالےلویا بڑی اچھی بات لگی کہندے جب ہم ہر چیز شیطان پہ ڈالتے ہیں نا تو شیطان کو ہم ہیوی کرتے ہیں اس کا نام لے لیں گے وہ جوش میں آتا ہے کہ میرا نام ہر جگہ ملتا ہے جب اس کا نام کم لیں گے خداوند کا نام زیادہ لیں گے تو وہ ڈرے گا کہ میں نے اتنے ہیوی بھی ہونا پر مسر نہیں ہوتا کہ پھر بھی خدا کا نام لینا ٹھیک ہے ہالےلویا کرونا ہی کرونا لوکی ہر ویلے کر دے خدا نہ کرونا لے رب تجھے ڈر دے کرونا ہی کرونا لوکی ہر رب تجھے ڈر دے ایتے کیتیاں نہ کھلے ملیا ایتے کیتیاں نہ کھلے ملیا یسوع دے کولوں دور رہن دی یسوع معافی کدی نہیں کسے نوں بھی کردا ہلا کے
ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਾਫੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਤੂੰ ਦਬਾ ਕਰਨਾ ਏ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਤੂੰ ਦਬਾ ਕਰ ਲੋ ਤੋਬਾ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਰ ਜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀ ਤੇ ਜਹਾਨ ਤੇ हालेलुया ये बातें नहीं है खुदावंद ने हमारे सब के लिए जान दी ये हमारा सबका यकीन है ईमान भी है क्या दोबारा हमारे गुनाहों के लिए खुदावंद यीशु मसीह दोबारा कितनी जान देगा तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सब बुरे काम छोड़ के खुदावंद के रास्ते पे चलें क्योंकि खुदावंद ने एक बार जान दी है खुदावंद दूसरी बार भी जान देने के लिए नहीं आना उसने इसलिए आना है कि हम सब खुदावंद की बादशाही में जा सकें हालेलुया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे अहले इलाकों में भाई हैं जो खुदावंद से बड़े दूर हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगर आवाज़ को सुन रहे तो जरूर हमारे साथ मिल के या हमारे साथ नहीं किसी भी चर्च के साथ मिल के जरूर चर्च जाएं खुदावंद के आगे झुकें और खुदावंद को हर टाइम याद करें हालेलुया कर लो तोबा यीशु कहंदा सानू आन के मारे जोगे तुसी नीते जहान ते कर लो तोबा यीशु कहंदा सानू आन के मारे जोगे तुसी नीते जहान ते यीशु दे कोलों दूर रहंदी लोकी कहंदे ने करो ना भला मेरा यीशु इनू कर दूं दबा लोकी कहंदे ने करो ना भला मेरा यीशु इनू कर दूं दबा ओ 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 मेरा यीशु इनू कर दूं दबा हालेलुया जोरदार तालियां सर को माला पहनाने के लिए चौधरी नदीम साहब आएंगे दीन साहब आप सबके जोरदार तालियां छोटे बच्चों का प्यार तो आप जो खुदावंद में मोहब्बत रखते हैं इस बात के लिए आपका शुक्रिया मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 13 बाब 31 जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा कि इब्ने आदम ने जलाल पाया और खुदा ने उसमें जलाल पाया और खुदा ने भी उसे अपने जलाल देगा बल्कि फिर फौर देगा ऐ बच्चों मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूँ तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते वैसा ही अब मैं तुमसे कहता हूँ आज हम जो है मसीह में इकट्ठे हुए खुदावंद ने आज हमें एक जगह इकट्ठे होने के लिए चुना इस मकसद के लिए आज हमें ज़िंदा रखा जितनी बीमारी चली जितनी वबा चली तो आज खुदावंद ने अपना कलाम आप तक उंडेलने के लिए आज आपको इस जगह पे इकट्ठा किया इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें तो क्या देखते हैं कि ये आज एक पहले भी हुक्म थे पुराने अहदनामे में देखते हैं तो वो सारे आप जानते हैं सारे मसीही हैं तो बखूबी दरमियान आए तो उन्होंने साफ हमसे कह दिया इस पाक कलाम के वसीला से कि आज मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ क्यों इसलिए कि हम जिंदगी पाएं और कसरत से ये कसरत की जिंदगी क्या है यीशु वो कहते हैं राह हक और जिंदगी में अब राह भी वो है हक भी वो है जिंदगी भी वो है तो अब जो ये जिंदगी वाला हुक्म है ये कौन दे रहा है जीसस ही इज ओनली वन और हुक्म भी क्या है मोहब्बत तो हम जब अपने छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं जब संडे स्कूल में भेजते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं पहली आयत हम उन्हें यही सिखाते हैं कि बेटा बोलो खुदा मोहब्बत है जो मोहब्बत है वो खुदा है अगर हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत बांटते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम एक दूसरे के साथ मसीह को शेयर करते हैं हम खुदा की बातें आपस में शेयर करते हैं लेकिन अगर हम मोहब्बत नहीं रखते तो मुकद्दस पौलुस की मुताबिक क्या कहता है कि मैं अगर
नबियों की ज़बानें बोलना शुरू हो जाऊं और नबूवतें करूं और सारा कुछ करूं और सारे कलाम पे अमल भी करूं, तो मैं क्या होऊंगा? ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ होऊंगा। क्यों इतना सारा कुछ कर लेने के बाद वो कहता है कि मैं तो फिर खाली हो गया, कि अगर मेरे में मोहब्बत ना हुई तो मेरे अजीजों, हमें यही बताया जाता है इस कलाम के इस कलाम के वसीला से कि हमें आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है। मैं बेसिकली कुछ और आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन शायद आज खुदावंद का यही मंसूबा था कि आज आपसे यही कलाम शेयर हो। मैंने इसलिए भाई को बुला के मैंने कहा कि क्या, उन्होंने कहा जो खुदावंद चाहते हैं होने दो। तो खुदावंद के जो एक शागिर्द हैं, उन्होंने कहा कि खुदावंद तू जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ जाऊँगा। याद होगा? याद? चलो, वो कहते कि जो भी होगा मैं तेरे साथ रहूँगा, बल्कि मैं जो भी मेरे साथ होगा मैं बर्दाश्त करूंगा, बल्कि तेरे साथ रहूंगा। उसने कहा बल्कि तू मेरा 3 दफा इनकार कर देगा, ये तो बड़ी दूर की बात है कि तू मेरे साथ रहेगा। उसने कहा जहां मैं जाता हूं तुम नहीं जा सकते, जो बपतिस्मा मैं लेने जा रहा हूं वो तुम नहीं ले सकते। ये सुना? वो कहता जो बपतिस्मा मैं लेने जा रहा हूं वो तुम नहीं ले सकते, इसलिए लिहाजा बेहतर ये है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। उसने ये बिल्कुल साफ कहा कि मैं जो यहूदियों से कह दिया कि मैं जहां जाता हूं तुम नहीं जा सकते, इसका मतलब कि वो कोई और दुनिया, उसमें अब हमें एंटर होने के लिए क्या है कि उसकी मोहब्बत में हमें रहना पड़ेगा। इसी के यूहन्ना के 15 बाब में देखते हैं कि वो कहते हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, जो मुझ में डाली कायम रहती मैं उसमें कायम रहता हूं। अब ये जो डाली है, जो मसीह यीशु है, इसमें कायम रहना बहुत मुश्किल है। इस डाली को जो अंगूर है, वो कहता है इसका दरख्त ही मैं हूं, जो इसमें से फल निकलता है कहता है तुम मेरी डाली हो। अब ये डालियां जो हैं, ये मसीह में कायम रहना बहुत जरूरी है। हमें एक दूसरे से, मतलब चाहे बहन का भाई के साथ कोई प्रॉब्लम है, अक्सर मैंने लोग देखे कि वो कलाम को सामने रख के जो है वो कह देते कि नहीं जी ये फैसला इंज नहीं होना, फलान ऐसे होगा, ये फलां बंदा कराएगा तो ऐसे होगा। जब कलाम उसमें आ गया तो फिर उसमें दूसरी बात और कौन सी रह गई? अगर कोई मसला, लड़ाई झगड़े घरों में हो जाते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता रहता है, लेकिन जब हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं तो क्या जब कलाम आता है तो हम उसको दरगुजर नहीं कर सकते? हम उसको दरगुजर भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है, हमारे अंदर एक अना है, एक प्रेस्टीज प्रॉब्लम है। वो प्रेस्टीज प्रॉब्लम जो है वो हमारे अंदर से निकलती नहीं, वो आएगा, वो माफी मांगेगा तो होगा, यहां पे नहीं, वहां पे मांगेगा। व्हाट इज दिस? क्यों मांगेगा वो माफी आपसे? जब दुआ करते तब तो कहते हैं कि जैसे मैंने माफ किया वैसे तू भी माफ कर, तो वो फिर हमें भूल जाता है। जब हम दुआ करते हैं तो कहते हैं कि जिस तरह मैंने अपने कर्जदारों को माफ किया खुदा तू भी मेरे कर्ज को माफ कर, तो फिर ये रटी रटाई क्यों का टेबल हो गया। जस्ट स्टार्ट एंड टिल एंड पढ़ो और खत्म करो। मतलब ये तो फिर दुआ इसी तरीके से रहेगी कि हम सिर्फ दुआ करते हैं और यूं पढ़ के और कहते हैं कि खुदावन शुक्र है दुआ खत्म हुई, तो चलो घर चलिए। नहीं, इस दुआ में जो है वो खुदावन ने, उसके शागिर्दों ने कहा कि ए उस्ताद हमें दुआ करना सिखा। अब ये जो दुआ, इसमें हमें माफी के बारे में बताया गया, आजमाइश के बारे में बताया गया, हमें बहुत से ऐसे हुक्मों के बारे में बताया गया जिन पर हमें अमल करना बहुत जरूरी है। अब ये हुक्म जो है, ये मोहब्बत के बारे में, ये मोहब्बत जो है ये सिर्फ खुदावंद ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। हम एक दूसरे की सलामती चाहते हैं तो एक दूसरे के लिए मोहब्बत चाहते हैं। हम क्या कहते हैं? खुदावंद तेरा भला कर, खुदावंद तेरे साथ हो। जब कोई बंदा मर जाता है तो ये नहीं कहते, कोई भी नाम ले सकते हैं, कोई भी नाम हो कि जी इस बंदे ने बहुत अच्छी अचीवमेंट की, इसने कोई 5 मरले का 10 मरले का घर बनाया, सो नाइस। कभी नहीं सुनेंगे आप,
कोई जनाजा हो, कोई इस तरह से हो, वो आप कभी नहीं सुनेंगे कि कोई ऐसे कहे कि इसने जी जॉब बहुत अच्छी की है, तो इतनी इसकी तनख्वाह थी, इसने बड़ी मेहनत कर इतनी दौलत कमाई, इसके इतने बच्चे हुए, इसने इतना कुछ कमाया, इतना कुछ किया, इतना इसका बैंक बैलेंस, और गाड़ियां दो हर बच्चे के पास एक एक गाड़ी, और ये वो फलान, कभी भी नहीं सुनेंगे। क्या सुनेंगे? ही इज सो जेंटल, ही इज सो कीन, ये बहुत अच्छा है, ये लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा, इसने चर्च की खिदमत की, ये लोगों के साथ बड़ा अच्छा रहा। इस तरह की बातें सुनेंगे। ये बातें कभी भी नहीं होंगी कि इसने बहुत अच्छी दौलत कमाई। क्या कहेंगे? हमारे जो पास्टर साहब हैं वो कहेंगे ये अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मतलब कलाम की कुश्ती लड़ चुका। तो अब ये जब हमें ये दौलत मिल रही है, मोहब्बत की दौलत मिल रही है, तो हम कभी भी उस दौलत को खरीद नहीं पाते हैं जो खुदावंद से हमें मिलती है। तो हम क्या कहते हैं कि ये बंदा जो मसीह में सो गया, ये अच्छी कुश्ती लड़ चुका। मतलब ये नहीं कि हम इकट्ठे हुए तो मैं जनाजे के मैसेज देना शुरू हो गया, नहीं। खुदावंद जो है वो मुर्दों में से उसने जिंदा होकर मैं दिखाया कि आके देखो, हड्डी और गोश्त मेरे पास है, और यही मैं लेकर ऊपर जा रहा हूं। जैसे मैं फातेह हूं तुम भी फातेह, जैसे मैं तख्त पर बैठा हूं तुम भी बैठोगे। तो क्या आज हम उस मिराज से हिस्सा नहीं लेने वाले? जो मसीह की बादशाही की आज खुशखबरी लेकर मैं आपके पास आया हूं, क्या उस खुशखबरी के लिए मैं आपको तैयार नहीं करना चाहता? मैं आपको तैयार करना चाहता हूं कि आप उस खुशखबरी के लिए रेडी हो जाओ। आज वो पुराने लिबास जो है वो आज आप उतारें और एक नए हुक्म के लिए अपने आप को तैयार करें, और वो पुराने लिबास आज यीशु के नाम से उतारें। वो सारे गंदे बंधनों वाले वो लिबास आज आप उतारें। आज वो जो गंदे बंधन है कौन से, कोई बताएगा प्लीज? बिद्दत के, हसद के, जुदाइयों के, झगड़ों के, लड़ाइयों के, नफरतों के। आज ये सारे जो है आज हम बंधन तोड़ने वाले हैं। तो जब हम दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं? खुदावंद तो बंधन तोड़ने वाला खुदा। तो क्या आज हम इन बंधनों को तोड़ पाएंगे? आज जो हम इकट्ठे हुए कहते हैं जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां मौजूद हूं। तो आज आप यकीन करें कि खुदावंद इस जगह पर मौजूद है। हालेलुया। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। ये अब आपके लिए शिफा जारी हो चुकी है। ये नया हुक्म जो है ये आपके दिलों में आज उतरेगा। अगर आज खुदावंद का कलाम इतनी ताकत रखता है तो ये आज आपकी जिंदगी में तासीर करेगा। अगर ये खुदावंद आज आपके बंधन तोड़ने आया है इस पाक कलाम के वसीला से, तो ये पाक कलाम एक नया हुक्म आपकी जिंदगी को आज एक नया रिवाइवल देगा। आज आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा अगर आज इस नए हुक्म को आज गौर से सुनेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। तो मेरे अजीजों, ये सुना तो आपने हजारों दफा है, जो बचपन से आज तक पढ़ते आ रहे हैं, यही कुछ पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज आपको ये हुक्म जो है दोबारा सुनाऊं, ताकि जो भी गर्द आपके दिलों पर जमी है आज वो उतर जाए। आज उस पाक खून के वसीला से जो सलीब पर बह निकला, आज उस सलीब के वसीला से आपको शिफा हो। आज उस पाक खून से जो उसके जख्मों से बह निकला, आज उसके वसीला से आपको शिफा हो। आज ये जो नया हुक्म है इसके वसीला से आप इटर्नल लाइफ में एंटर हो। क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी जो है वो जुदाइयां, झगड़े, बिदतें पड़ चुकी हुई हैं जो निकल नहीं रही। तो आज ये मोहब्बत के बीज जो है ये मैं आपको आज दे के जाऊंगा, ताकि ये मोहब्बत के बीज आपकी जिंदगी में फल लाना शुरू हो, आप फ्रूटफुल हो। कोई 10 गुना, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। हालेलुया। आज ये जो मोहब्बत का हुक्म है आज ये आपको दे के जाऊंगा, ताकि जब आप अपने घर जाओ तो ये मत कहेंगे कि आज हम इतनी देर बैठ के थक गए, बल्कि ये जाके कहेंगे कि आज खुदावंद का हुक्म हमें मिला है, तो वो आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं।
whether he is your father or father-in-law, whether he is your brother or brother-in-law, whether he is your sister or your sister-in-law, कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपके मायके से हो या ससुराल से। आप उन्हें क्या कहेंगे कि आज मैं आपके लिए एक बाइबल के मुताबिक एक हुक्म लेके आया हूं, आज आप इसको सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आज मुझे ये मोहब्बत के बीज मिले, मैंने फल लेके आना है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। हालेलुया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप बड़े गौर से इस चीज को सुन रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आइंदा कभी हमारी मुलाकात हो तो ये वाकई ये फ्रूटफुल जो ये पौधे हैं ये वाकई फल लेके आएंगे, और जो घरों में रिश्तेदारों में जो किसी कोई भी हो, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन मुझे ये मतलब है कि ये कलाम जो कर रहा है ये वाकई तासीर रखता है। जब ये तासीर करेगा तो आपकी जिंदगियां वाकई तब्दील होंगी। जब ये आपको तब्दील करेगा, एंड यू हैव टू चेंज योर लाइफ। इसके आगे कोई रीजन नहीं है। मतलब क्या रीजन नहीं है कि मैं आपके साथ मोहब्बत शेयर ना करूं? मैं कौन होता हूं? जो मसीह है, जो आज आपके दरमियान है, वो आपके पास मोहब्बत लेकर आए हैं। उसने कहा ये देखो, क्या मैंने तेरे लिए जान नहीं दी? क्या मैंने तेरे साथ मोहब्बत नहीं की? मैं तेरा अच्छा दूल्हा नहीं हूं? तुम मेरी अच्छी दुल्हन नहीं हो? अपने आप को तैयार करो। किस चीज के लिए तैयार करें? नॉट फॉर द वेडिंग। उसकी मोहब्बत में जिंदा रहने के लिए हमने अपने आप को तैयार करना है। आज रूह के लिबास मांगेंगे, आज कुव्वत के लिबास मांगेंगे। कहते हैं कि बाकी चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी, ये सुनो, और तुम रूह कुद्दस इनाम में पाओगे, ये भी सुनो मत्ती में। जो बाकी दुनिया की चीजें हैं वो गैर कौमें उसकी तलाश में रहती हैं, लेकिन आप क्या करो? आप रूह कुद्दस रिसीव करो, मांगो। और खुदावंद सच्चे परिस्तार ढूंढता है। मैं शायद आयत इधर उधर से कोट कर रहा हूं, लेकिन मतलब मोहब्बत का है। मतलब खुदावंद की मोहब्बत का ही। मैं जिधर भी जाऊं वापस स्टॉप मोहब्बत पे होगा। आज वो मोहब्बत जो खुदावंद ने हमारे लिए जान दी, क्या इसलिए जान दी कि आज हम उन्हीं गुमराही के रास्तों पर पड़े रहे, एक दूसरे से हम बिदतें रखें, जुदाइयां रखें। ये आएगा तो मैंने शादी पे नहीं जाना, ये आएगा तो मैंने वहां पे नहीं जाना, इसको मना करो, या उसको रखो या मुझे रखो। ये किस चीज की बातें हैं? क्या आज हमारे दिलों में वो मोहब्बतें ठंडी पड़ गई? क्या आज वो मोहब्बतें हमारे दरमियान ठंडी पड़ गई? आज वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकती हैं, लेकिन क्या सिर्फ हमारे दिल में क्या आ गया? गलबा किसी गंदी चीज का, किसी शैतान का, किसी इब्लीस की उस चाल का जो टूट नहीं रही। आज हम दुआ करेंगे कि वो जो बंधन है आज वो टूटे। बीमारियां, जुदाइयां, बीमारी क्या करेगी जी? वो फलां को बुलाए, वो करेगा, वो फलां पादरी, वो फलां ऐसे, उधर चर्च। आप सीधा जाए जो आपकी पोशीदगी में सुनता है, वो कहता है मैं तुझे पोशीदगी में सुनता हूँ, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत रखता है। तो कहता है तू सातवीं कोठड़ी में जा, मैं तुझे सुनता हूँ। तो क्या आज हम उस मोहब्बत करने वाले को, जिसने हमारे साथ मोहब्बत शेयर की, क्या हम उसके सामने घुटने टेक कर हम उसके सामने नहीं आ सकते? क्या उसके साथ कोई और पास्टर हो सकता है, ये हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, कोई हो सकता है? नहीं, आप जाए तो सही, एक दफा मान के तो देखें। वो आपसे वाकई बहुत मोहब्बत करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है। वो कहते हैं एक दफा देखो तो सही, मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, खटखटा रहा हूँ, तो मेरे लिए दरवाजा खोल, मैं अंदर आके तेरे साथ खाना खाने वाला हूँ। मैं तेरे घर की भी हिफाजत करूंगा, तेरे घर के लोग जो है उसकी भी हिफाजत करूंगा। एक दफा खोल के तो देख। आज ये मोहब्बत जो है, आज ये बीज मैं आपको दे के जा रहा हूँ, ताकि ये बीज जो है ये वाकई आपकी जिंदगी में आज काम करना शुरू हो। आगे देखेंगे जी, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो इसका फैसला हो गया कि खुदावंद ने जितने ही हमारे साथ बात की, उसके आगे एक फैसला भी दे दिया
تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ خداوند نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا بلکہ روح القدس دے دیا اور اس نے کہا میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا. اور یہ فیصلہ میں آگے دے دیا کہ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو میرے شاگرد ٹھہرو. اور اس میں کسی عورت کا یا مرد کا تعین نہیں کیا گیا. اس میں یہ بتایا گیا کہ جو بھی کا مطلب چاہے وہ بچہ ہو, چاہے بوڑھا ہو, چاہے بچہ ہو, وٹ ایور, he is in the disciples, وہ میرا شاگرد. یہ فیصلہ خداوند نے ہمیں دے دیا, اس لیے یہ حکم جتنا تھا یہ آج ہمارے لیے پورا ہوا. اور خداوند نے اس محبت کے ساتھ ہمیں حکم دے دیا کہ اب یہ محبت جب تمہارے دلوں میں آ جائے گی تو تم کیا ٹھہرو گے؟ میرے شاگرد ٹھہرو گے. تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے شمعون, پطرس, اندریاس سب کو برکت دی, اپنے ساتھ رکھا, انہیں کھانا کھلایا, موجوں میں شامل ہوئے, سارا کچھ ہوئے. تو آج کیا ہوا؟ آج ہمیں بھی یہ حکم دے کے تو ہمیں کیا کر دیا؟ ایک ہمارے لیے حکم جاری کر دیا, اور بلکہ ہمیں ایک اچھی آپشن دے دی کہ اگر اب تم اس حکم پہ عمل کرو گے تو کیا ٹھہرو گے؟ میرے شاگرد ٹھہرو گے. تو آج کون کون چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے جو ہیں شاگرد ٹھہریں؟ آج کون یہاں سے اپنا کلام کا ایک حصہ لے کر اپنے گھر جائے گا؟ آج کون اپنے آپ کو خداوند کے آگے سرنڈر کرے گا؟ آج کون اپنے آپ کو خداوند کے آگے کہے گا کہ خداوند میں تیرا بندہ, میں تیری بندی ہوں, آج جو کلام میرے ساتھ جا رہا ہے خداوند یہ میرے گھر میں اجالا کرے, روشنی کرے. کیونکہ خداوند کا کلام یوحنا کی معرفت دی گئی انجیل میں جب ہم پہلے باب میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تاریکیاں جاتی رہی, اندھیرے جاتے رہے, اور خداوند کا نور چمکنا شروع ہوا, اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. مطلب تاریکی جاتی رہی, تاریکی ختم ہو گئی. تو آج جو آپ کی زندگی میں تاریکی ہیں وہ کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہیں, کسی بھی قسم کی, روپے پیسے کی, یا کوئی بھی گھر میں پرابلم ہے. تو اگر ہم صرف محبت میں رہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ہمارے اندر جو جسمانی معاملات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. جو ہم روز مانگتے ہیں نا جسمانی طور پہ کہ خداوند ہمیں یہ دے تو وہ دے, تو وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ روح کے لیے بھی تو مانگ کے دیکھ میں تجھے کیا دیتا ہوں. اگر میرے عزیزوں روح القدس مانگتے ہیں, روح کی برکتیں مانگتے ہیں, خداوند کو مانگتے ہیں, پاک روح کے لباس مانگتے ہیں, تو کیا خداوند ہمیں نہیں دیتا؟ خداوند ہمیں ضرور دیتا. آج ہم دعا کریں گے کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ آج اس پاک کلام کے وسیلہ سے چینج ہو. اس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کی خطائیں معاف ہوں. اے مسیح تیری ستائش. بیان کیا خدا کے خادم کے لیے اور خدا کے لیے زوردار تالیاں ایک بار. مدد کرتا ہے, ہماری رہنمائی کرتا ہے. خدا ہم تیری دی ہوئی ساری برکتوں کے لیے تیرا شکر گزار ہوں. خاص طور پر خدا آج تیرے خادم نے جو کلام سنا ہے خدا اس کے لیے تیرا شکر گزار ہوں. اور خداوند اس کلام کے لیے دعا مانگتا ہوں, یہ کلام ہمیشہ ہمارے دلوں میں نقش رہے خدا. کوئی 30 گنا, کوئی 60 گنا, کوئی 100 گنا پھل رہے خدا. یہ نہ ہو کہ یہاں پہ سنا اور باہر جا کے اپنے سوچ و خیال و ارادوں سے نکال دے, بلکہ یہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں پیوست رہے اور جڑ رہے خدا. تاکہ خدا ہم ہر بات میں اس بات کا خیال رکھیں کہ خدا محبت ہے, اور وہ محبت خدا نے ہمیں دی ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ, انکساری کے ساتھ ہمیشہ اپنی زندگی بسر کریں. خدا تیرے اس زوروار کرام کے لیے خدا تیری برکت کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. تیرے پاک جلالی ابدی قدوس میٹھے پیارے و برکت نام سے مانگتے ہیں. جلال جلال تیرا ہے, جلال 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 تیرا ہے, جلال 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 تیرا ہے, جلال. خداوند تیری ثنا ہو, خداوند تلے جلال. شہنشاہ مسیحا, شہنشاہ مسیحا, خاتم الکمال. جلال 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 تیرا ہے, جلال 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 جلال
तेरा है जलाल। ऐ शदाई भी तू, एदोनाई भी तू, शदाई भी तू, एदोनाई भी तू, तू यहोवा है तू जलाल 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 जलाल, तेरा है जलाल 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 जलाल, तेरा है जलाल। जिंदा खुदा के चरणों में आके तेने जब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। ओ हालेलुया, जिंदा खुदा के चरणों में आके तेने जब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जलाल 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 जलाल, तेरा है जलाल 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 जलाल, तू जलाल 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 जलाल, तेरा है जलाल 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 जलाल, तेरा है जलाल। आंसू भरी जीवन की राहें तुझ में सकून खुदा, लिपटूं तुझसे चाहूं तुझको पाक गयूं रे खुदा। आंसू भरी चाहूं तुझको पाक गयूं रे खुदा। जलाल 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 जलाल, तेरा है जलाल 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 जलाल, तेरा है जलाल। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जलाल। शहनशाह है मसीहा, शहनशाह है मसीहा, हाकिम उल कमाल। जलाल 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 जलाल, तेरा है जलाल जलाल जलाल, यीशु तेरा है जलाल, ओ यीशु तेरा है जलाल। आइए हम दुआ करें। खुदा कुदूस तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जलाल के बादशाह, तू जो मीर और कुदरत वाला खुदा है, जलाली है, कुदूस मेहरबान खुदा है, रब्बुल फाश खुदाउंद है, तू लश्करों का खुदा है। ऐ बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज शाम के लिए जो तेरे बंदा के साथ मिलकर हमने बरकत हासिल की है। तेरा कलाम जो खुदा हमारी जिंदगी में बरकत का सबब बन गया है, शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा हम सब के लिए दुआ करता हूँ कि सब ने जितनों ने कलाम सुना है, मेरा ईमान है कि सब ने इस कलाम के वसीला से बरकत हासिल की। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते तेरे बंदा के लिए, उसको और ज्यादा वसी कर बरकत दे। और खुदा हम दुआ करते सदजात के लिए जिन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया है, तो खुदा उनके हाथों को तो बरकत देना, उनके किचनों पर, उनके घरों पर तेरी बरकत को मांगते हैं। ये जहां सर्फ हो खुदा तेरे जलाल का सबब बन जाए, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम सब की मदद और रहनुमाई करना, यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं और बड़े ईमान से पाते हैं, आमीन आमीन। जो भी रिक्वेस्ट है आप बता सकते हैं। हाँ जी, जो भी रिक्वेस्ट आप बता सकते हैं, क्योंकि जो रिक्वेस्ट हम वो किसी पास्टर के आगे नहीं रख रहे, ये हम खुदा उनके तख्त के आगे रखते हैं। तो हमारे दिल में कभी भी ये बात नहीं आनी चाहिए कि फलां पास्टर, ओनली वन ऑफ द नेम, हालेलुया। तो जो भी किसी की प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं, किसी की बीमारी हो सकती है, किसी का कर्जा हो सकता है, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, व्हाटएवर। ओके, चलिए सबके लिए दुआ करेंगे। सब अपने सरों को झुकाएं खुदा की हजूरी। आज ईमान रखें कि आज जो मांगेंगे आज खुदा उनके नाम से यहाँ से लेकर जाएंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। जिंदा खुदावन जलाल से भरे खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हाल में बाला पर हो शना। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, हाल में बाला पर हो शना। खुदावन तेरा नाम मुबारक है,
तो अबद तक मुबारक है, तो वक्तों ज़मानों को बदलने वाला है, तो बादशाहों को मासूल करने वाला है, तमाम पोशीदा चीज़ें हम पर जाहिर करता है खुदावंद, तो मेरा जिंदा खुदा। खुदावंद मैं तुझ पर यकीन रखता हूँ, एतकाद रखता हूँ खुदावंद, अपने आप को सरेंडर करता हूँ खुदावंद। इन बच्चों को तेरे पास लेकर आया हूँ खुदावंद, तेरे फाटकों में लेकर आया हूँ खुदावंद, तेरी बारगाह में लेकर आया हूँ खुदावंद। आज ये फाटक हमारे लिए खोल दे। इन भेड़ों को तेरे पास लेकर आया हूँ, इनका रोना देख, इनका वावेला करना देख खुदावंद। ये भेड़े रोती चिल्लाती वावेला करती तेरे पास चली आती हैं, वो गंदे भेड़िए जो दांत पिछाड़े खड़े हैं खुदावंद, आज उनसे तू लड़। तमाम गंदी बीमारियां, अब्लीसी लानते तेरे यीशु के नाम से कैंसल कर देता है खुदावंद। तो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को शोला बनाकर इस्तेमाल करता है आज खुदावंद। तो अपने खादम को शोला बनाकर इस्तेमाल कर खुदावंद। इन बच्चों के लिए बरकत चाहता हूँ, ये मेरे नहीं तेरे हाथ बढ़ चुके, तेरा रूह कुद्दस इन पर नाजिल होना शुरू हो खुदावंद। आसमान के दरीचे खुल जाएं खुदावंद, आसमान खुल चुका, तेरे यीशु नाम से आसमान खुल चुका खुदावंद। तेरा रूह कुद्दस इन पर अबर बनकर छा जाए। तेरा रूह कुद्दस जब छू जाता है तो खुदावंद बंधन टूट जाते हैं। तेरा रूह कुद्दस जब छा जाता है तो जुए टूट जाते हैं खुदावंद। आज तेरा रूह कुद्दस इन पर नाजिल हो, जैसे बाला खाना पर नाजिल हुआ। आज वही थरथराहट चाहता हूँ खुदावंद तेरे नाम से खुदावंद। आज इन पर रूह की फटती हुई जुबान इन पर ठहर जाए खुदावंद। ये बच्चे अपने लबों को खोलें खुदावंद, तेरे नाम को मुबारक कहें, तेरे नाम को धन्यवाद कहें, तेरे नाम के आगे झुकें, तुझे सजदा करें और तेरे नाम की गवाही दें खुदावंद। इनकी जिंदगी से तमाम हर्डल्स तेरे यीशु के नाम से रिमूव हो जाए। जो बे औलाद है खुदावंद, आज उनके लिए बरकत चाहता हूँ, उन जोड़ों के लिए बरकत चाहता हूँ खुदावंद। सारी कमी कमजोरियों को खुदावंद तू दूर कर खुदावंद। तू बंद रहम को खोल दे यीशु नासरी। तू टूटी हड्डियों को जोड़ने की कुदरत रखता है खुदावंद। तू मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है खुदावंद। तू प्यार से बुलाता है तो लाजर 4 दिन का मुर्दा कब्र से बाहर आ जाता है खुदावंद। आज तेरी प्यार भरी आवाज इनके घरों में गूंजना शुरू हो, इनके जिस्मों में गूंजना शुरू हो खुदावंद। आज ये बच्चे रूह कुद्दस रिसीव करें। आज पुराने गंदे लिबास खुदावंद आज तेरे नाम से रिमूव कर देता हूँ। तमाम जो जख्मकारी लगे हैं खुदावंद आज तेरे नाम से रिमूव हो जाए खुदावंद। तेरा पाक अबर छा जाए खुदावंद। तू बादलों पर सवार होकर आने को है जो जिंदा है खुदावंद। वो हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करें, जो मुर्दे हैं वो जिंदा किए जाएं खुदावंद। आज जो दिलों पर तमाम बच्चों के लिए बरकत चाहता हूँ खुदावंद, तेरा दायना कुव्वत वाला हाथ इनके लिए बढ़ जाए, किसी किस्म की कोई कमी न रहे। इनकी आटे की मट्टी भरी रहे, तेल की कुप्पी भरी रहे। इनके किचन को ब्लेस करता हूँ, इन बेटियों को इन बेटों को ब्लेस करता हूँ। इनके हाथों का जलाल छा जाता है तो खुदावंद बंधन टूट जाते हैं खुदावंद। तो कोड़ियों से कहता है तो वो साफ हो जाते हैं खुदावंद। आज इन बच्चों को छू ले, तमाम किस्म की गंदी लानतें आज तेरे यीशु के नाम से रिमूव होना शुरू हो। तेरा रूह कुद्दस आज इनकी जिंदगी में एक नया रिवाइवल लेकर आए खुदावंद। तेरा रूह कुद्दस आज सारे बंधनों को तोड़े खुदावंद। उन बच्चों की दुआओं की तरफ कान लगा खुदावंद। तेरा कान खुदावंद, तेरा पाक जलाल इन सबों को छू जाए, इनकी जिंदगियों को मुनव्वर कर खुदावंद। छोटे पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रेयर करता हूँ खुदावंद। इनकी जिंदगियों को चेंज कर, इनके दिलों को चेंज कर खुदावंद, इनके ज़हनों को चेंज कर खुदावंद। ये बच्चे दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें, तेरे नाम में बढ़ते जाए, खून और गोश्त में बढ़ते जाए, कदोकामत में बढ़ते जाए खुदावंद। तेरे नाम को मुबारक कहते जाए खुदावंद। ये बच्चे दुनिया के आखिरी कोने तक तेरा कलाम फैलाने वाले खुदावंद। फसल पक चुकी, मजदूर थोड़े हैं खुदावंद। आज मजदूरों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। आज इन मजदूरों को बरकत दे खुदावंद। ये मजदूर तेरे नाम में बढ़ते चले जाएं, तेरे नाम को आगे फैलाने वाले बने। बेटे लॉरेंस को, इस पूरी जमायत को खुदावंद, इनके घराने को जो घरों में है खुदावंद, आज उन सब के लिए बरकत चाहता हूँ। मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत चाहता हूँ खुदावंद। इस गंदी बीमारी के लिए, इस वबा के लिए बरकत खुदावंद। आज इसको रिमूव कर, अपने दाहिने हाथ से
टच कर, जो अंधेरे में चलती है तेरी नजर उसे देखती है, जो दोपहर को वीरान करती है खुदावंद तेरी नजर उसे देखती है। खुदावंद तू तमाम घरानों को बरकत दे, इस वबा से दूर रख, इन घरानों को बरकत दे, छू ले और पाक कर दे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक के नाम से आमीन। खुदावंद की पाक सिखलाई हुई दुआ में, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह पर, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज को माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा से है। आमीन। The grace of the God and the love of the Jesus Christ and the communion of Holy Spirit in the mighty name of Jesus Christ, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबकी सलामती हो। आमीन।